Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing the sixth chapter, that is anatomy of flowering plants, and in this chapter till now we have discussed about the various types of plant tissue system, and we have done in detail about the anatomy of dicot and monocot root, stem and leaf. And today we will be concluding this chapter by doing the last topic, that is secondary growth. Now students, I have told you many times what is primary growth and what is secondary growth. Primary growth is the increase in the length of the plant. When the plant height is increasing, its length is increasing longitudinally, then it is known as what? Primary growth. And primary growth takes place with the help of shoot apical meristem. We all know that primary growth takes place with the help of shoot apical meristem and root apical meristem. And secondary growth means the increase in the girth of the stem. When there is increase in the diameter of the stem, then this is known as what? Secondary growth. And secondary growth takes place with the help of lateral meristems, which are present on the lateral side of root and stem. So what is primary growth in plants? Primary growth is the upward growth of the stem and the downward growth of the roots. It is the type of growth that makes a plant longer. Now we all know what is primary growth. Primary growth, it results from cell division at the apical meristem, whether it is present at the tip of the stem or it is present at the tip of the root. Secondary growth results from cell division of the lateral meristem, increasing the shoot's girth. Okay? So shoot's girth, it will be increased. So when the girth of the stem or root is increased, this is known as what? Secondary growth. So secondary growth की definition क्या है students? It is the increase in stem thickness that results from secondary growth. Secondary growth is due to the activity of the lateral meristems, which are lacking in the herbaceous plants. Lateral meristems includes the vascular cambium, and in woody plants it includes the cork cambium. So what are the lateral meristems? Lateral meristems which are increasing the girth of the stem, they are of two types. One is the vascular cambium and other is the cork cambium. So, we will study here the secondary growth of both stem and root, and we all know that secondary growth, it is absent in case of monocot root and monocot stem, whereas it is present in case of dicot root and dicot stem. So here in this lecture we will be doing the secondary growth of a dicot stem and a dicot root. Now, how does secondary growth takes place, students? We all know that secondary growth, it takes place with the help of what? With the help of lateral meristems. And this lateral meristem, it is of two types. One is the vascular cambium and the other is the cork cambium. Now, the vascular cambium, it is of two types. One is known as fusiform initials and second is known as ray initials. Fusiform initials जो हैं students, they will form secondary xylem and secondary phloem. And what the ray initials will do? Ray initials, they will form secondary medullary rays. So they will form secondary vascular rays. Second has students cork cambium, which is also known by the name phellogen. And this phellogen, it is forming cork cells towards the outer side and cortex or cork parenchyma towards the inner side. We will do the secondary growth with the help of vascular cambium and with the help of cork cambium in detail.
So this is the whole summary of how the secondary growth it is taking place with the help of lateral meristems. So what we have done here, we have done that the lateral meristem it is of two types. One is the vascular cambium और second क्या है, cork cambium है. vascular cambium दो टाइप का है, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हैं, रे इनिशियल्स हैं. फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का काम है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना. रे इनिशियल्स का काम है सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाना. और कॉर्क कैम्बियम जो है वो फॉर्म करेगा फेलम दैट इज कॉर्क टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड फेलोडर्म दैट इज cortex cells towards the inner side. So now we will start the secondary growth in stem. तो secondary growth in stem start करने से पहले एक बारी पहले recall करो what was the structure of a dicot stem. डाइकॉट स्टेम में तुम्हें बताया था स्टूडेंट्स की डाइकॉट स्टेम की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि इनके जो वॉस्कुलर बंडल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग. Like we can see here that these second vascular bundles, the xylem and phloem, they are arranged in a ring. तो स्टेम के डाइकॉट स्टेम के वॉस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? दे आर conjoint, they are collateral and they are open. ठीक है. Now what is conjoint? Conjoint we all know when xylem and phloem both are present along the same radii, and when phloem is towards the outer side it is known as collateral. और ओपन का मतलब क्या बताया था स्टूडेंट्स? ओपन का मतलब मैंने ये बताया था कि व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम. सो कैम्बियम, ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, दिस इज दी वॉस्कुलर कैम्बियम विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी जाइलम और फ्लोएम. और हम देखेंगे कि वॉस्कुलर कैम्बियम जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एट द टाइम ऑफ व्हाट, सेकेंडरी ग्रोथ. स्टूडेंट, ये जो वॉस्कुलर कैम्बियम है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम. अब ये तो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, बिकॉज ये प्राइमरी ग्रोथ के द्वारा बना हुआ है. सो दिस इज द प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम. और दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो कैम्बियम प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स फेसिकुलर कैम्बियम. दिस इज नोन एज व्हाट, फेसिकुलर कैम्बियम. सो हाउ डज द सेकेंडरी ग्रोथ इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ स्टेम. एक्टिविटी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वी विल डू अबाउट दी वॉस्कुलर कैम्बियम, बिकॉज इस वॉस्कुलर कैम्बियम ने क्या करना है, इसी ने सेकेंडरी जाइलम, इसने सेकेंडरी फ्लोएम बनाना है और इसने सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाने हैं. नाउ व्हाट इज, पहला स्टेप है द स्ट्रिप ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट इन द वॉस्कुलर बंडल. नाउ द कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड दिस कैम्बियम इज नोन एज फेसिकुलर कैम्बियम. The cells of the medullary rays adjoining the strip of the fascicular cambium or vascular cambium, it will become meristematic and it will form what, interfascicular cambium. And both the inter and fascicular cambium, they will join together and they will form a ring. This ring is known as what, cambial ring. And this cambial ring, it will now divide and it will form secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the outer side. ये स्टूडेंट्स है. सो ये देखो डायग्राम की हेल्प से हम करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज द फेसिकुलर कैम्बियम. अब क्या होगा, ये बीच का पार्ट क्या था, ये मेडुलरी रेज थे, प्राइमरी मेडुलरी रेज थे. तो अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी मेडुलरी रेज हैं दे विल बिकम मेरिस्टेमैटिक एंड व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. अब ये जो फेसिकुलर कैम्बियम है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये ज्वाइन करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा. दिस विल फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. लाइक वी कैन सी इट हैज फॉर्म्ड अ कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज व्हाट, कैम्बियल रिंग. अब जो काम करना है इस कैम्बियल रिंग ने करना है. अब ये कैम्बियल रिंग स्टूडेंट्स डिवाइड करेगा पेरिक्लिनली. अब ये थोड़ा सा मैं बताती हूँ कैसे डिवाइड करेगा, ये दिखाएगा स्टूडेंट्स. सो ये सपोज कि ये पूरा का पूरा जो है कैम्बियल रिंग है. अब ये कैम्बियल रिंग स्टूडेंट्स देखो डिवाइड कर रही है पेरिक्लिनली. इस डिविजन्स को हम कहते हैं पेरिक्लिनल डिविजन्स. दिस इज द पेरिक्लिनल डिविजन्स विच इज पैरेलल टू द प्लेन. देखो इस तरीके से जब डिविजन्स होंगी तो नेचुरली जो डायमीटर है स्टेम का इट विल व्हाट, इंक्रीज. तो देखो ये क्या कर रहा है, ये जो वॉस्कुलर कैम्बियम है या ये जो कैम्बियल रिंग है देखो ये डिवाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म, दिस इज वन कैम्बियल, दिस इज द कैम्बियल सेल. तो कैम्बियल सेल ने देखो डिवाइड करके एक सेल इनर साइड की तरफ बनाई है और एक सेल
आउटर साइड की तरफ है। तो ये जो आउटर साइड की तरफ सेल है, दिस इज द कैम्बियल सेल। मतलब कैम्बियल सेल ने एक कैम्बियल सेल जब डिवाइड हुआ तो उसने इनर की तरफ बना दिया सेकेंडरी जाइलम, बट कैम्बियल सेल दैट इज स्टिल रिमेनिंग। नाउ दिस कैम्बियल सेल विल अगेन डिवाइड एंड इट विल फॉर्म secondary phloem towards the outer side and again the cambial cell will remain as such। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो कैम्बियल सेल है ये डिवाइड करके क्या करेगी, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स द इनर साइड। ये याद रखना है बेटा कि सेकेंडरी जाइलम इट विल बी एडेड टूवर्ड्स द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम इट विल बी एडेड टूवर्ड्स द आउटर साइड। और इस तरीके से धीरे धीरे होगा क्या कि स्टेम की जो गर्थ है इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स सेकेंडरी ग्रोथ इट विल टेक प्लेस। तो ये देखो स्टूडेंट्स सेकेंडरी ग्रोथ दिखाया गया है। सो ये देखो इनिशियल डायमीटर है स्टेम का, तो ये कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन हुई। कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन से हुआ क्या कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन हुई। ये याद रखो कि सेकेंडरी जाइलम जो है ये देखो पर्पल कलर का दिखाया गया है, दिस इज फॉर्म टूवर्ड्स द इनर साइड, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है दैट इज फॉर्म टूवर्ड्स द आउटर साइड। सो ये रेड कलर का जो पार्ट दिखाया गया है दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम। अब मुझे थोड़ा सा बताओगे कि अब जब डिविजन्स हो रही हैं, देखो ये था, अगर हम देखा जाए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर करें तो ये इस तरीके से है। ये क्या था, हमारा प्राइमरी जाइलम था एंड दिस वाज द प्राइमरी फ्लोएम। तो ये रिंग थी। अब इस रिंग ने डिवाइड करके क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाया और सेकेंडरी जाइलम जो है वो इनसाइड की तरफ बनाया। तो अगर मैं अब तुम्हें इस तरीके से दिखाऊं तो अब होगा क्या कि जो प्राइमरी जाइलम है ये प्राइमरी जाइलम है, उसके दिस इज द प्राइमरी जाइलम, उसके बाद क्या है सेकेंडरी जाइलम, ये हमारी कैम्बियल रिंग है, फिर ये क्या है, दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम। तो जब इस तरीके से डिविजन्स होंगी तो हम देखेंगे कि जो प्राइमरी जाइलम है इट विल मूव टुवर्ड्स द इनर साइड, वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और जो प्राइमरी फ्लोएम होगा इट विल मूव टुवर्ड्स द आउटर साइड, और ये प्राइमरी फ्लोएम इवन क्रश्ड भी हो जाएगा। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स नाउ जो स्टेम है इट विल बी हैविंग ओनली व्हाट सेकेंडरी जाइलम एंड इट विल बी हैविंग सेकेंडरी फ्लोएम, बिकॉज प्राइमरी फ्लोएम भी सारा अंदर की तरफ चला गया है एंड इट प्राइमरी फ्लोएम भी इवन क्रश्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेशर ऑफ द सेल्स इन द इनर पार्ट, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो पुश्ड हो रहा है टुवर्ड्स द आउटर साइड। सो the primary phloem that is also pushed towards the outer side, so the primary phloem जो है it also gets crushed। so students इस तरीके से secondary growth जो है stem की that is taking place, और इस तरीके से गर्थ जो है वो stem की होती है। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। कुछ सेल्स जो है वो रे इनिशियल्स का काम करेंगी, और ये रे इनिशियल्स क्या करेंगी, ये डिवाइड होके फॉर्म करेंगी सेकेंडरी मेडुलरी रेस। नाउ स्टूडेंट्स जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है व्हेन द सेकेंडरी जाइलम एंड द फ्लोएम दैट इज फॉर्म्ड, तो अब होगा क्या कि बाहर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी फ्लोएम भी क्रश्ड हो गया, इवन बाहर के जो टिश्यूज हैं उन पे इतना प्रेशर पड़ता है कि दे विल स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉइंग, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट गेटिंग क्रश। तो बाहर वाला जो टिश्यू है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और बाहर वाले पार्ट पे अब स्टूडेंट्स क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी। क्लियर होगा। सो बाहर वाले पार्ट पे अब स्टार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी। सो कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन जिसको हम कहते हैं वो डेवलप होगा इन दी कॉर्टेक्स। अब जो बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स है, बिकॉज अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, सारे के सारे टिश्यूज जो हैं दे आर पुश टूवर्ड्स दी आउटर साइड। तो बाहर वाला जो पार्ट है एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, उस पर तो इतना प्रेशर होगा कि इट विल स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा कि जो कॉर्टेक्स की बाहर वाली सेल्स हैं दे विल ऑल्सो टर्न मेरिस्टेमेटिक, they will again start dividing, and what they will form, they will form the phelogen that is the cork cambium, और ये cork cambium अब divide करेगा and it will add cells both towards the inner side as well as towards the outer side। जो inner cells होंगे students वो differentiate करेंगे into secondary cortex, और जो outer वाली cells होंगी वो develop कर जाएंगी into phellum और cork। जो कॉक सेल्स होती हैं जो बाहर की तरफ ऐड हुई हैं,
ठीक है, दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, वो डेड होती हैं, उनमें सुबेरिन की डिपॉजिशन होती है, ठीक है, ताकि पानी का लॉस ना हो सके। बट कई कई प्लेसेस में हम देखते हैं कि ये जो कॉर्क सेल्स होती हैं दे आर वेरी लूजली प्रेजेंट। तो जहाँ पे ये लूजली प्रेजेंट होती है वहाँ पे छोटे छोटे से हमें पोर्स नज़र आते हैं कई बारी बार्क के ऊपर। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं दीज आर नोन एज लेंटिसल्स। और लेंटिसल्स के हम थ्रू देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं दे प्लांट्स की ट्रांसपीरेशन होती है। सो इट इज़ थ्रू दी लेंटिसल्स की जो वुडी ब्रांचेज हैं और ट्री ट्रंक्स हैं, इनकी इवन गैसेज एक्सचेंज भी हो रही है। सो गैसेज एक्सचेंज जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दिस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस थ्रू दी लेंटिसल्स। और फेलोजन, फेलोडम और फेलम तीनों को इकट्ठे हम क्या कहते हैं, पेरिडम। थोड़ा सा डायग्राम से और देखो क्लियर होगा। सो अंदर की तरफ देखो बेटा, जब प्रेशर डेवलप हो गया अंदर, तो अब क्या होगा कि जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं दे विल टर्न मेरिस्टेमेटिक और वो क्या बना देंगी, कॉर्क कैम्बियम बनाएंगी। अब ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो डिवाइड होगा और वो बाहर की तरफ क्या ऐड करेगा, कॉर्क ऐड करेगा, और अंदर की तरफ क्या ऐड करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऐड करेगा। और ये तीनों चीज़ें जो है फेलोडम, फेलोजेन, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, पेरीडम। सो इस तरीके से कॉर्क कैम्बियम जो फॉर्म्ड हुआ है टुवर्ड्स द आउटर साइड, वो अंदर वाले प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए फॉर्म्ड हुआ है ताकि बाहर वाले टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा डैमेज्ड ना हों। So फेलोजेन, फेलोडर्म एंड फेलम. What is फेलोजेन? फेलोजेन है कॉर्क कैम्बियम. What is फेलोडर्म? फेलोडर्म इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स. एंड what is फेलम? फेलम इज द कॉर्क. तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेरिडम कहते हैं। कई बारी आ जाती है व्हाट डू यू मीन बाय पेरिडम। सो पेरिडम, इन तीनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, पेरिडम कहते हैं। और जितनी भी स्टूडेंट्स डेड सेल्स हैं विच आर लाइंग आउटसाइड दी कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम के बाहर क्या है, कॉर्क कैम्बियम के बाहर क्या क्या प्रेजेंट है, कॉर्क कैम्बियम के बाहर ये कॉर्क प्रेजेंट है, ये एपिडर्मिस प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारा का सारा पार्ट जो है दिस इज नोन एज बार्क, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको हम कहते हैं बार्क। सो ये देखो स्टूडेंट्स लेंटिसल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखो कॉर्क कैम्बियम जो है वो फॉर्म्ड हुआ, ये कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्ड हुआ, कॉर्क कैम्बियम ने सेकेंडरी कॉर्टेक्स इनसाइड ऐड किया, कॉर्क आउटसाइड ऐड किया। अदरवाइज तो कॉर्क की सेल्स बहुत डेंसली पैक्ड हैं, बट कुछ एरियाज में ये जो कॉर्क सेल्स होती हैं ये बहुत लूजली अरेंज्ड होती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स। तो दीज लेंटिसल्स दे आर द स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट on the stem and through which the stems they do the process of gases exchange and transpirations. So next क्या है स्टूडेंट्स, एनुअल रिंग्स। अब ये जो वॉस्कुलर कैम्बियम है जिसने डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाना है, इसकी एक्टिविटी जो होती है ना वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप से होती है। जब स्प्रिंग सीजन आता है, ग्रोइंग सीजन आता है, तो उस टाइम जो वॉस्कुलर कैम्बियम होता है वो बड़ा एक्टिव होता है और वो जो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा वो बहुत बड़े बड़े डायमीटर के बनाएगा, लार्ज इंटरनल डायमीटर होगा और उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल्स होंगी वो इतनी थिकेंड नहीं होती हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन के टाइम में जो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड हो रहा है दैट इज लार्जर इन साइज, दैट इज थिन वॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड कहते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। और जब ऑटम सीजन आएगा, जब सर्दियां शुरू होंगी, फॉल सीजन आएगा, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम कैम्बियम की एक्टिविटी थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी और उस टाइम जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसकी वॉल्स बहुत थिक होंगी और वो छोटे साइज का होगा। इस टाइप की वुड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लेट वुड कहते हैं या फिर ऑटम वुड कहते हैं। तो मतलब देखा जाए तो एक साल में इन 1 ईयर स्प्रिंग वुड बना और फिर ऑटम वुड बना। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को काउंट करके पता लगा लेते हैं व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। तो इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, दीज आर नोन एज व्हाट, एनुअल रिंग्स। तो ये जो ऑल्टरनेशन है ऑफ द स्प्रिंग वुड जिसको हम अर्ली वुड कहते हैं और लेट वुड विच इज द ऑटम वुड, दैट इज लार्जली ड्यू टू द सीजनल decrease in the number of vessel elements and a seasonal increase in the number of tracheids, ठीक है। तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग और वो ये एनुअल रिंग हमें इस तरीके से गोल गोल नज़र आती हैं और एन एग्जामिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स और उनका नेचर,
ठीक है. इट कैन रिवील द एज ऑफ द ट्रीज एंड द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यूरिंग ईच सीजन्स. और साइंटिस्ट इवन इससे क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं. तो ये डायग्राम से देखो स्टूडेंट क्लियर होगा. तो ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ऑटम वुड है, स्प्रिंग वुड है. स्प्रिंग वुड तुम देख रहे हो लाइटर कलर की है. यहाँ पे जो जाइलम है दैट इज लार्जर इन साइज, सेल वॉल्स जो है इसकी थिन है. और जो ऑटम वुड है वो डार्क कलर की लाइंस है. ये जो डार्क कलर की लाइन है दिस इज द ऑटम वुड, और ये जो लाइट कलर की लाइन है दिस इज द स्प्रिंग वुड. तो साइंटिस्ट जो हैं वो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, वन स्प्रिंग वुड प्लस वन ऑटम वुड दैट इज 1 year. देन नेक्स्ट स्प्रिंग वुड, नेक्स्ट ऑटम वुड मीन्स इट इज ऑफ 2 years. सो इस तरीके से साइंटिस्ट जो है दे कैन इवन प्रिडिक्ट द एज ऑफ द ट्रीज बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द एनुअल rings. So one annual ring, it is formed of 1 autumn wood and 1 spring wood. Now students, what is sapwood and what is heartwood? Sapwood क्या होती है students? Sapwood को हम एल्ब्यूमिन के नाम से भी मुम के नाम से भी जानते हैं. It is the living and outermost, this one, the living and the outermost portion of the woody stem, branch or root of a plant where the sap flows. होता क्या है कि स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो सारा का सारा प्राइमरी फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ चला गया. बाहर की तरफ क्या है, अंदर सारा का सारा क्या चला गया, प्राइमरी जाइलम दैट इज पुश टूवर्ड्स इनसाइड. और बाहर वाला पोर्शन क्या है, सारा सेकेंडरी जाइलम है. तो अब ये जो अंदर वाला जो जाइलम होता है स्टूडेंट्स, ये नॉन फंक्शनल हो जाता है. ये कैसे नॉन फंक्शनल हो जाता है कि इसमें थोड़ा सा इसमें रेजन्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें गम इकट्ठा हो जाएगा, इसमें टेनिन्स इकट्ठे हो जाएंगे. इसकी इतनी ज़्यादा प्लगिंग हो जाती है, ये इतना ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाता है कि दैट इट इज़ नो लॉन्गर एबल टू कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स की जो कंडक्शन होगी वो बाहर वाले पार्ट से होगी, सेकेंडरी जाइलम से होगी. तो ये जो अंदर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये हार्टवुड है. बट इसकी कमर्शियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज इसमें रेजन्स होते हैं, इसमें एरोमा होता है. तो ये जो फर्नीचर्स बनाने के लिए ये जो वुड होती है बहुत अच्छी होती है. ये टर्माइट रेजिस्टेंट होती है, इस पर दीमक नहीं लगता ज़्यादा. और जो बाहर वाली वुड है वो जो है दैट इज़ नोन एज सैप वुड. ठीक है, और सैप वुड जो है वो लाइट कलर की है और यहाँ पे जो है ब्लॉकिंग नहीं हुई है सेकेंडरी जाइलम की. तो यहाँ पे इसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल्स की क्या हो रही है, कंडक्शन हो रही है. तो cells contain the more water and they lack darkly staining chemical substances which are commonly found in the heartwood. And what the sapwood is doing, it is adding support to the plant और ये water और minerals की transportation करवा रहा है. Very important, sapwood जो है वो water और minerals की transportation करवाता है, जबकि जो heartwood है जिसको हम duramen भी कहते हैं वो dead है because it is getting blocked by a number of chemical substances which are secreted by the plants like resins, tannins and gums. But it is mechanically very strong, it is resistant to decay and it is having a very high commercial importance. Now students, so this was all about the secondary growth of the stem. तो secondary growth को थोड़ा सा हम एक बार ही कर लेते हैं जो है इसकी समरी कि एपिकल मेरिस्टम से देखो स्टूडेंट्स प्राइमरी ग्रोथ हुई थी. ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ से ये सारी स्ट्रक्चर्स बनी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, प्राइमरी फ्लोएम, वॉस्कुलर कैम्बियम एंड प्राइमरी जाइलम. जब सेकेंडरी ग्रोथ किससे स्टार्ट हुई, वॉस्कुलर कैम्बियम से स्टार्ट हुई. वॉस्कुलर कैम्बियम ने हमने देखा कि इट हैज़ फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. और कॉर्टेक्स ने क्या बनाया, कॉर्टेक्स ने कॉर्क कैम्बियम बनाया और इस कॉर्क कैम्बियम ने फॉर्म किया कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स. Now next students, next is the secondary growth of the roots. अब secondary growth of roots करने से पहले एक बारी रूट की स्ट्रक्चर जो है, डाइकॉट रूट की स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा करते हैं. तो रूट्स के केसेस में स्टूडेंट्स वॉस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, रेडियल हैं. रेडियल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इट ऑल्टरनेट्स विद ईच अदर. अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये फ्लोएम है. फ्लोएम की ये जो नीचे वाली सेल्स हैं दे विल टर्न मेरिस्टेमेटिक. अब जितना नंबर होगा फ्लोएम का उतनी ही ये जो है कैम्बियल रिंग्स जो हैं, हम देखेंगे कि ये रिंग्स जो हैं दे विल बी फॉर्म्ड. सपोज कि यहाँ पे अगर 4 है नंबर फ्लोएम का तो 4 रिंग्स दे विल बी फॉर्म्ड बिलो दी फ्लोएम. सो जब सेकेंडरी ग्रोथ होना है तो प्राइमरी फ्लोएम के नीचे जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं दे विल टर्न मेरिस्टेमेटिक.
इसी तरीके से ये जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरीसाइकिल की सेल्स हैं, दे विल ऑल्सो टर्न मेरिस्टेमेटिक, और इस तरीके से ये भी ज्वाइन करके दे विल फॉर्म अ वेवी रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखो, इस तरीके से हमने देखा कि फ्लोएम के नीचे जो पेरेन्काइमेटल सेल्स थी वो मेरिस्टेमेटिक हो गई, और जो प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरीसाइकिल की सेल्स थी दे टर्न मेरिस्टेमेटिक, और इस तरीके से एक कैम्बियल रिंग जो है वो फॉर्म्ड हुई है। और ये कैम्बियल रिंग अब उसी तरीके से काम करेगी जैसे अभी हमने डाइकॉट स्टेम के केस में पढ़ा, दैट इट विल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स द आउटर साइड। नाउ स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो है दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और ये वाला जो पार्ट है जो प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरीसाइकिल की सेल्स मेरिस्टेमेटिक टर्न हुई हैं, ये रे इनिशियल्स का काम करेंगी, तो ये बनाएंगी मेडुलरी रेस। और ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस विल फॉर्म व्हाट, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है। अब इसके नीचे क्या ऐड होगा, सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होगा, सेकेंडरी जाइलम ऐड होगा। अब होता क्या स्टूडेंट्स, देख रहे हैं हम कि ये जो रिंग है इट इज़ वेवी, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम सर्कुलर। वाई इट विल बिकम सर्कुलर, बिकॉज ये जो पार्ट है यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम की एडिशन हो रही है। अब सेकेंडरी जाइलम विच इज एडेड दैट इज मोर एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम विच इज एडेड टूवर्ड्स द आउटर साइड। तो इस होता क्या है कि अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है सेकेंडरी जाइलम का, बिकॉज अगर एक सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ ऐड हो रहा है तो दो सेकेंडरी जाइलम जो है दे आर एडेड टूवर्ड्स द इनर साइड, तो नेचुरली प्रेशर डेवलप होगा अंदर की तरफ, और ये जो वेवी रिंग है इट विल टर्न व्हाट, इट विल टेक अ सर्कुलर फॉर्म। सो ये देखो स्टूडेंट्स, दिखाया गया है इस तरीके से, सो रिंग बनी हुई है, एंड दिस रिंग इट इज़ फॉर्मिंग व्हाट, इट इज़ फॉर्मिंग सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स द outer side, and in this way there will be increase in the girth of the root, and this increase in the girth of the root, this is known as what, secondary growth। and I have told you just now that इतना ज़्यादा अंदर प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है सेल्स का ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ कि बाहर वाला जो पार्ट है इट स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड। तो बाहर वाला पार्ट जो है इट विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, एंड हाउ इट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अब होगा क्या कि जो सेल्स हैं, हमने स्टेम के केस में देखा कि जो कॉर्टेक्स की सेल्स थी दे टर्न मेरिस्टेमेटिक, और उन्होंने क्या बनाया, कॉर्क कैम्बियम बनाया। बट यहाँ पे क्या होगा इन केस ऑफ रूट, जो पेरीसाइकिल की सेल्स हैं दे विल टर्न मेरिस्टेमेटिक एंड दे विल फॉर्म व्हाट, कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम सेम वैसे ही काम करेगा, दिस कॉर्क कैम्बियम इट विल फॉर्म व्हाट, कॉर्क टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स द इनर साइड। तो इस तरीके से अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, उसको रेजिस्ट करने के लिए बाहर वाली जो सेल्स हैं, पेरीसाइकिल की सेल्स हैं, उन्होंने कॉर्क कैम्बियम फॉर्म किया, और इस कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ ऐड किया कॉर्क और अंदर की तरफ ऐड किया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इन तीनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेरिडर्म कहते हैं। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पेरिडर्म की फॉर्मेशन जो है इट इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ roots also. So students, in this way the secondary growth it will take place in the case of stem and in the case of root. So we have done in detail how the secondary growth is taking place in the stem and in the root. I hope students कि ये टॉपिक जो है वो तुम्हें समझ आया होगा। जो है इस ड्रॉ दीज डायग्राम्स, मेक नोट्स इन योर कॉपी सो दैट द थिंग्स इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, ये लास्ट में समरी दिखाई गई है। सो समरी में हम कर लेते हैं कि स्टेम के केस में एपिकल मेरिस्टम है। एपिकल मेरिस्टम स्टूडेंट्स 3 टाइप का है, और ये क्या करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है। सो दिस इज़ द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में एपिडर्मिस बना, कॉर्टेक्स बना, पेरीसाइकल, प्राइमरी जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, है ना, सब कुछ फॉर्म्ड हुआ। अब देखो जो वॉस्कुलर कैम्बियम है, वॉस्कुलर कैम्बियम ने बनाया सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, और अभी मैंने बताया कि रूट्स के केस में जो पेरीसाइकल है वो बनाएगी कॉर्क कैम्बियम,
ठीक है। और इवन जो रूट्स की ब्रांचेज होती हैं स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें करवाया था कि रूट्स की ब्रांचेज जो होती हैं दे आर एंडोजीनस, कहा था ना। और स्टेम की ब्रांचेस क्या होती हैं, एक्सोजीनस होती हैं। एंडोजीनस का मतलब वो अंदर की तरफ से निकलती हैं। तो पेरीसाइकल जो है दैट इज टुवर्ड्स द इनर साइड। तो जो रूट्स की ब्रांचेस हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम द पेरीसाइकल, देयरफॉर दे आर नोन एज एंडोजीनस। और पेरीसाइकल जो है वो कॉर्क कैम्बियम भी फॉर्म कर रहा है, और ये कॉर्क कैम्बियम फॉर्म कर रहा है कॉर्क टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स द इनर साइड्स। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट समरी है, कंप्लीट डेवलपमेंटल सीक्वेंस है टिश्यू डिफ्रेंसिएशन का विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ डाइकॉट root. So students, this was all about this chapter. We have completed this chapter by doing the last topic, that is the secondary growth. So students, thank you.